Hello everyone, welcome back to Physics HQ. This is Professor Sandeep, your tutor for the class 11 series. Today we are starting with the one shot series and we will be covering chapter 10 electrostatics. So let us start with this. Now electrostatics simply means ki you got electric charges at rest. So you can have a positive charge like this and a negative charge placed somewhere like this. अब होगा क्या कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बिकॉज ये लोग अपोजिटली चार्ज्ड है. इफ यू गॉट अनदर चार्ज विच इज नेगेटिव देन इन दैट केस ये दोनों चार्जेस के बीच में देर विल बी फोर्स ऑफ रिपल्शन बिकॉज ये दोनों लाइक चार्जेस है and this charge will be attracted by the other two charges because they have opposite charges. So whenever you have charges at rest you got forces acting between them. अब इनकी वजह से there is this electric field and electric potential produced जिसके बारे में we will be discussing. Now when the electric charges are moving then in that case it is simply current electricity जो कि एक different chapter हो गया. Charges are everywhere around us and we can see them in many cases, like while removing sweater in winter on a dry day we hear some crackling sound at times and that is happening because body और sweater के बीच में friction होता है and there is this transfer of charge that happens. One more example that we have is of lightning, in which what happens is a large amount of charge is developed on clouds because of friction, and when the quantity is too high to hold for the clouds it is discharged to earth. Now let us talk about this electric charges. Historically Greeks knew about the opposite charges from this 600 BC and even magnetism was known from those times. They knew कि अगर हम लोग amber and fur को रब करेंगे एक साथ में दोनों के ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस डेवलप होते. सेम कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन वी रब ग्लास रॉड अलोंग विथ सिल्क. तो ग्लास रॉड के ऊपर देयर विल बी पॉजिटिव चार्जेस एक्यूमुलेटेड और सिल्क के ऊपर नेगेटिव चार्जेस. अब ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्यों आता है? बेसिकली ग्लास पे से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सिल्क में ट्रांसफर हो जाता है. सो वहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है एंड ग्लास के पास से इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाता है सो इट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड. एज वी नो दैट कि एक सिंगल एटम का अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे वी गॉट न्यूक्लियस एट द सेंटर जिसके पास वी गॉट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स विच आर टाइटली हेल्ड टुगेदर. प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है एंड अराउंड दिस न्यूक्लियस वी गॉट इलेक्ट्रॉन्स गोइंग अराउंड दिस ऑर्बिट्स which are negatively charged. ठीक है, so generally the number of protons is equal to number of electrons and because of which एक atom क्या होता है, neutral होता है. So most of the matter around us is electrically neutral. Now the example that we took over here amber and fur या फिर ये glass और silk का, इसको हम लोग बोलते हैं charging by conduction, where the actual transfer of charges has taken place from one object to another. There is one more way of charging a body and that is called as charging by induction. Charging by induction में क्या कर सकते हैं ना कि let us say you got a metallic body and इसके पास में you are bringing a positively charged object. ये metallic object में what will happen is कि there will be accumulation of negative charges at the end near to this positively charged object and जितना यहाँ पे negative charge जमा हुआ है उतना ही on the other end we will find कि positive charges क्या हो रहे हैं, accumulate हो रहे हैं. इसके ऊपर MCQ भी है आपको. I have taken a metallic body over here and I brought another object which is positively charged over here. तो होगा क्या कि ये metal में से there will be electrons coming towards the end जहाँ पे we got this positively charged object over here and because of repulsion there will be similar quantity of positively charged on the other end. Now what we can do is if we connect this other end with the ground ये सारा जो positive charge है वो क्या हो जाएगा, neutralize हो जाएगा and then what we are left with is this negative electrons which are still held together by this positively charged object.
Now once you remove this positively charged object, what happens is कि ये electrons it still stays on this object only, क्योंकि ये इसी object का electrons है, ये कहीं और से नहीं आया था. Fine. So what we have done is we have charged this object by this method of induction, जहाँ पे one object से दूसरे object में transfer नहीं किया है हमने electrons का. The electrons that we get over here is the electrons of the same object. I hope you have understood this charging by induction. Now let us talk about the basic properties of electric charge one by one. First we'll talk about the additive nature of charge. जैसे हम लोग masses को, length को and बाकी quantities को add करते हैं, वैसे ही we can add up charges as well. The only catch is the addition should be algebraic sum over here. Now what do you mean by algebraic sum over here? जैसे हमने बोला कि यहाँ पे जो charges है there can be positive as well as negative charges. So while adding up we will be considering their signs as well. For example, if I have an object जिसके ऊपर I got plus 5 coulomb का charge and plus 3 coulomb का charge, then I can say कि इसके ऊपर total plus 8 coulomb का charge. Let us take one more example. If I have plus 5 coulomb and minus 7 coulomb का charge, then ये object के ऊपर total charge जो हो गया वो हो गया minus 2 coulomb charge. And let us take one more case जिसके अंदर we got plus 5 coulomb and minus 5 coulomb. Then in this case इसके ऊपर जो charge है वो 0 है. So just to compare with the analogy of adding the masses, यहाँ पे we can have a positive number or we can have addition to be negative or 0 as well, because we can have charges negative over here जो कि masses या length में तो नहीं होता है. So the total charge can be positive or it can be negative or 0 also. Now let us talk about the quantization of charge. It was found by the Millikan's oil drop experiment कि electron का charge is 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. It comes with a minus sign. And for a proton, the charge is 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb with a plus sign. Now what quantization means is कि this is the basic amount of charge, and अगर कोई भी object के ऊपर एक particular charge है, then the total charge will always be an integral multiple of this value 1.6 into 10 raised to minus 19. Integral value मतलब यहाँ पे n की value is 1, 2, 3 and so on, यही रहने वाला है. Let me give you all an example. If somebody says कि there is an object जिसके ऊपर charge है 3.2 into 10 raised to minus 19, then in that case this can be written as 2 times 1.6 into 10 raised to minus 19. तो यहाँ पे n की value हो गई 2. Similarly, if somebody says कि there is a charge of 8 into 10 raised to minus 19 coulomb, now this can be written as 5 into 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. तो again ये क्या हो गया? Integral multiple of charge, electron का charge का value which is 1.6 into 10 raised to minus 19. If somebody says I got a charge which is 4 into 10 raised to minus 19 coulomb. Now this comes out to be 2.5 times 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. And यहाँ पे ये जो value है n का वो integer नहीं है. So this kind of charge cannot exist, which simply means that कि जितना भी charge कहीं पे भी exist करेगा, that will always be a multiple of integral multiple of 1.6 into 10 raised to minus 19. I hope you all understood this. यहाँ पे 2.5 मतलब 2 complete और एक आधा charge ऐसा exist नहीं करता है. It will be complete 2 charges or complete 3 times the multiple of 1.6 into 10 raised to minus 19. I hope आपको quantization clear है. Now let us talk about the conservation of charge. So within an isolated system, charge cannot be created or destroyed, और इन सिंपल वर्ड्स चार्ज कंजर्व होता है. हमने जो एग्जांपल लिया था पहले ग्लास रॉड और सिल्क का, जहाँ पे व्हेन वी रब देम टुगेदर, ग्लास के ऊपर से जो इलेक्ट्रॉन्स है दे गेट ट्रांसफर्ड टू सिल्क, बिकॉज ऑफ विच जो सिल्क है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है एंड जो ग्लास है वो क्या हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज, बिकॉज उसके पास अब कम इलेक्ट्रॉन्स है कंपेयर टू प्रोटॉन्स.
सो यहाँ पे चार्ज कहीं बाहर से आया नहीं था, ना डिस्ट्रॉय हुआ है ना क्रिएट हुआ है, खाली क्या हुआ है यहाँ पे चार्ज ग्लास के ऊपर से सेल के ऊपर ट्रांसफर हुआ है. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस. लास्टली वील टॉक अबाउट द फोर्सेस बिटवीन चार्जेस, जो हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया है. लेट अस से यू गॉट अ चार्ज विच इज पॉजिटिव इन नेचर एंड दूसरा चार्ज विच इज ऑल्सो पॉजिटिव इन नेचर. सो दीज टू आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर बिकॉज ये लोग लाइक चार्जेस है. एंड इफ इन केस यू गॉट both negative charges, once again they'll repel because they are again like charges. Now in case if you got a positive charge और दूसरा वाला अगर negative charge है, then there will be a force of attraction between them because they are different charges. So these are the cases that can happen. Same charges में there will be repulsion and opposite charges में there is force of attraction. Now let us talk about Coulomb's law. Coulomb actually gave us the formula कि how much is the force of attraction या repulsion between the charges if they are separated by some distance. Now let us talk about the scalar form of this Coulomb's law. The statement says that कि the force of attraction or repulsion between 2 point charges which are at rest is directly proportional to the product of the magnitudes of the two charges and it is inversely proportional to the square of distance between them. So if I got a charge q1 over here and another charge q2 over here और इन लोग के बीच में जो distance है that is r, then there will be force of attraction or repulsion based on इन लोग का charges क्या है. So let us say both of them are positive, then they will have force of repulsion between them. एंड सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर इज कि ये जो फोर्स रहता है बिटवीन दीज टू चार्जेस इट ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम. सो फोर्स ऑन रिपल्शन ऑन द फर्स्ट चार्ज विल बी इन दिस डायरेक्शन बिकॉज ऑफ सेकेंड चार्ज और सेकेंड वाले को फर्स्ट वाला रिपेल करेगा इन दिस डायरेक्शन. नाउ लेट अस टेक वन मोर केस. यू गॉट चार्ज q1 हियर, यू गॉट पॉइंट चार्ज q2 ओवर हियर. पॉइंट चार्ज मतलब उनका डायमेंशन नेग्लिजिबल है and one is positive and another one is negative and this is the line joining the 2 point charges. Then q1 के ऊपर force of attraction रहेगा towards q2 and q2 के ऊपर भी force of attraction रहेगा towards q1. Once again ये दोनों के बीच में जो distance है that is r. So this force can be either force of attraction or force of repulsion. एंड जब हम लोग ये प्रोपोर्शनल हटाते हैं वी गेट अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ओवर हियर व्हिच इज डिनोटेड बाय k. सो वी गॉट द फॉर्मूला एज f इज इक्वल टू k q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. आई होप आप लोग को स्केलर फॉर्म समझ में आ गया. नाउ लेट अस टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड एज रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. अब ये रिलेटिव परमिटिविटी आया कहाँ से? सो जो हमने लास्ट फॉर्मूला देखा f इज इक्वल टू k q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, इसके अंदर ये k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन एंड ये एप्सिलॉन इज नथिंग बट परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम. अब ये परमिटिविटी मतलब क्या है कि अलग अलग मीडियम में ये दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा वो वेरी करेगा और कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलाउ हो रहा है इन अ पर्टिकुलर मीडियम दैट इज डिफाइंड बाय दिस परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. ये हर एक मीडियम का प्रॉपर्टी है बेसिकली. अलग अलग मीडियम के लिए यू विल फाइंड परमिटिविटी का वैल्यू टू बी डिफरेंट. नाउ इट वाज फाउंड कि ये जो एप्सिलॉन की वैल्यू है इट इज मिनिमम फॉर फ्री स्पेस और वैक्यूम एंड इवन एयर के लिए सेम वैल्यू लेते एंड इट इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन नॉट और इसका वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, विच सिंपली मीन्स कि इफ आई प्लेस टू चार्जेस q1 एंड q2 इन फ्री स्पेस एंड अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है r तो फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर and this force will be maximum in this free space. अब अगर आप ये दोनों चार्जेस को किसी और मीडियम में रख दोगे then in that case the force का फॉर्मूला will be 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 q2
divided by r square, and this epsilon का value will depend upon the medium. एंड जैसा मैंने ऑलरेडी बोला कि एप्सिलॉन का वैल्यू इज मिनिमम फॉर फ्री स्पेस और वैक्यूम, बाकी कोई भी मीडियम के लिए इसका वैल्यू क्या है, ग्रेटर ही है. अब अगर एप्सिलॉन का वैल्यू ग्रेटर है तो होने क्या वाला है कि फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी किसी भी और मीडियम में जाने से. सो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट इज बेसिकली टेकन एज रेफरेंस टू डिफाइन एप्सिलॉन का वैल्यू फॉर अ पर्टिकुलर मीडियम, एंड दैट रेफरेंस इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ रेशियो. So we got new term defined यहाँ पे which is called as relative permittivity epsilon r. This is equal to epsilon permittivity of a medium divided by epsilon naught permittivity of free space. अब इससे फायदा क्या हुआ कि ये वाले फॉर्मूला में हम लोग सिंपली एप्सिलॉन की जगह पे पुट कर सकते हैं एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r. आपको क्वेश्चंस में एप्सिलॉन r की वैल्यू दी रहेगी एंड एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, जो आप याद रख लेंगे तो बेटर है, 8.85 into 10⁻⁻12. सो दिस फोर्स का फॉर्मूला विल बिकम 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r q1 q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. अब इसे सम सॉल्व करना भी आसान हो जाता है क्योंकि ये 1/4 pi एप्सिलॉन नॉट की जगह पे हम डायरेक्टली 9 into 10⁻9 लिख सकते हैं. सो दिस एप्सिलॉन r इज नथिंग बट द relative permittivity and it tells you कि epsilon naught और epsilon के बीच में क्या relation है. Hope you all understood this. Next part देख लेते हैं. Definition of unit charge from Coulomb's law. अब Coulomb's law हमने देखा कि force का formula क्या है, K into Q1 Q2 divided by R square. In free space force का formula क्या हो जाता है, 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. और ये 1/4 pi epsilon naught is nothing but 9 into 10⁻9. So we can define unit charge over here. So 1 coulomb is that amount of charge which when placed at a distance of 1 meter from another charge of same magnitude, यानी ये भी होगा 1 coulomb का, पॉजिटिव रहे या नेगेटिव रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. Then when you put this value over here 1 q1 और q2 की जगह पे और r की जगह पे 1, so what we see is कि यहाँ पे जो force exert हो रहा है that is 9 into 10⁻9 Newton. So the definition is कि 1 coulomb is that amount of charge when you place it at a distance of 1 meter from another charge of same magnitude, they will experience a force of 9 into 10⁻9 in free space or vacuum. 1 coulomb जो चार्ज है इट्स अ वेरी बिग अमाउंट ऑफ चार्ज. सो इसके लिए सम्स में हम लोग देखेंगे कि जो यूनिट होता है वो इसके साथ में रहता है 1 माइक्रो कूलम, एंड माइक्रो इज नथिंग बट 10⁻6. वी कैन ऑल्सो हैव नैनो कूलम. नैनो इज 10⁻9 कूलम, एंड देयर इज दिस पिको कूलम एज वेल विच इज 10⁻12 कूलम. होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस. नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं. Now we'll talk about Coulomb's law in vector form. As we all know कि Coulomb's law में हमने force define किया between two charges. अब force एक vector quantity है तो उसका direction भी हम यहाँ पे define करने वाले along with the magnitude जो हमने already define किया. ठीक है. So let us assume we got one charge over here Q1 which is positive in nature, and let us say origin से इसका जो position vector है that is R1. There is one more charge Q2 which is also positive in nature, and इसका जो position vector है that is R2. Now there will be force of repulsion between these two charges क्योंकि दोनों क्या है, like charges है. पहले वाले के ऊपर जो force act करेगा that will be in this direction. We got force on the first charge because of second charge which is written as F12. Once again F12 is nothing but force on first charge because of the second charge. Now this will be given by 1/4 pi epsilon naught q1 q2 divided by ये जो distance है ये दोनों के बीच में. Let us say this distance is denoted by r फिलहाल के लिए. So it will be r square. Now we need to talk about the direction in terms of vector. तो यहाँ पे we can have two vectors actually. One vector will be directed from q1 to q2 and this vector is called as r21. So we got
r21 vector which is nothing but r2 vector minus r1 vector. ये आप ट्राइंगल लॉ से निकाल सकते हैं. एंड देयर इज वन मोर वेक्टर जो q2 से जा रहा है q1 पे. दिस विल बी रिटन एज r12. सो यू गॉट r12 which is given by r1 vector minus r2 vector. So we got this vector r12 pointing in the direction of f12. तो यहाँ पे we will be denoting the direction of vector f12 by this vector r12, but हम इसका यूनिट वेक्टर लेंगे. ठीक है, यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. सिमिलरली सेकेंड वाले चार्ज पे भी देयर इज दिस रिपल्सिव फोर्स इन दिस डायरेक्शन, और इसको हम लोग लिखेंगे फोर्स ऑन द सेकेंड चार्ज बिकॉज ऑफ फर्स्ट चार्ज. सो वी गॉट F21, this will be equal to 1 upon 4 pi epsilon naught, once again Q1 Q2 divided by R square, where this R is nothing but magnitude of R21 ले लो चाहे magnitude of R12 ले लो. ना F21 के डायरेक्शन में कौन है? R21 है. सो वी गॉट R21 का यूनिट वेक्टर. अगर मैं यहाँ पे R21 का वेक्टर लिख दूंगा तो उसका मैग्नीट्यूड भी रहेगा एंड देन फोर्स का वैल्यू चेंज हो जाएगा. सो वहाँ पे पूरा इनकरेक्ट हो जाएगा. नाउ व्हाट वी ऑब्जर्व ओवर हियर इज कि F12 इज इक्वल टू F21 इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, बट दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है. सो अगर मैग्नीट्यूड वाइज लिखना है मॉड में तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, बट अगर वेक्टर वाइज हम इसको लिखने जाएंगे सो इट विल कम विद अ माइनस साइन ओवर हियर. एंड रिमेंबर दिस रूल कि F12 या F21 they will be acting along the line which joins them. Now let us talk about principle of superposition, where you got this charge Q1 और इसके ऊपर बहुत सारे चार्जेस की वजह से फोर्स एक्ट कर रहा है, and all the charges are positive over here, let us say, then in that case Q2 की वजह से जो Q1 के ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है that will be in this direction, force on first charge because of second charge. थर्ड वाले चार्ज की वजह से जो फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहा है that is force on first charge because of third charge. Similarly फोर्थ वाले के लिए we got force on first charge because of fourth charge and so on. ऐसे you can have so many charges. So जो टोटल फोर्स इसके ऊपर एक्ट करेगा that will be vector addition of all the forces F12 plus F13 plus F14 and so on. Now इन सारे फोर्सेस के फॉर्मूला में हमें पता है कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन ही आने वाला है, एंड देन वी गॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस. सो Q2 से Q1 क्या करते हैं? एक वेक्टर बना देते हैं, and this vector will be vector r12. so यहाँ पे we got डिनोमिनेटर में डिस्टेंस का स्क्वायर चाहिए, तो ये जो r12 वेक्टर है उसका हम लोग मॉड ले लेंगे टू गेट द मैग्नीट्यूड, उसका स्क्वायर, और उसका डायरेक्शन के लिए we will be using the unit vector of r12. Similarly 2 to 3 के लिए we will be having vector r13. so यहाँ पे आ जाएगा Q1 Q3 divided by r13 का स्क्वायर, and we got r13 का वेक्टर and so on for all the remaining forces. यहाँ पे प्लीज अंडरस्टैंड, हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर में खाली मैग्नीट्यूड चाहिए था, तो हमने क्या किया, हर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, और हमें डिस्टेंस का स्क्वायर चाहिए तो हम यहाँ पे मॉड का स्क्वायर लगा दिया, और डायरेक्शन के लिए हमने उसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड किया हुआ है. How to find unit vector? तो unit vector is nothing but vector r12 divided by the magnitude of r12. Hope you have understood this. Now let us go to the next topic. Now let us talk about electric field. Whenever we have a charge q placed in free space, when we bring another charge q in vicinity of it, what happens is that the charge experiences a force of attraction or repulsion depending upon the nature of the charge, and therefore ये जो रीजन है जहाँ तक अगर हम लोग कोई चार्ज लेके आए तो बिकॉज ऑफ दिस चार्ज प्लस क्यू द अदर चार्ज इट एक्सपीरियंसेस दिस कूलम फोर्स, जिसका फॉर्मूला हमने देखा था, एंड दिस रीजन इज नथिंग बट कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड. जहाँ पे अगर दूसरा कोई चार्ज आएगा
then it will experience a force of attraction of or repulsion because of this charge plus q. Now कूलम लॉ के हिसाब से फोर्स का फॉर्मूला इन फ्री स्पेस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर. And in terms of vector, let us say we got this vector r, unit vector r, showing the direction of the force which is along the line joining the two charges. अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है? So electric field is defined as the force which is experienced by this charge q. So in this formula what we are left with is 1/4 pi epsilon naught capital Q by r square. ये small q हमने ये बाजू ले लिया या you can say हमने divide कर दिया. So from this we got the formula of the electric field because of the point charge at distance r. Now irrespective of ये दूसरा charge रहे ना रहे, ये कैपिटल Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा एग्जिस्ट करेगा. And that electric field का formula at any distance r we can calculate by the formula E is equal to Q upon 4 pi epsilon naught r square. ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस r. यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड आउट. फोर्स के लिए इट विल बी न्यूटन एंड चार्ज के लिए इट विल बी कूलम. सो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हो जाएगा न्यूटन पर कूलम. और डायमेंशनल फॉर्मूला का अगर हम लोग बात करें, फोर्स के लिए वी गॉट LMT⁻⁻² एंड चार्ज इज नथिंग बट करंट इनटू टाइम. करंट के लिए आ जाएगा एम्पियर, टाइम के लिए आ जाएगा t. सो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वी गॉट L1 m1t-3 and a-1 as the dimension. Now let us talk about electric field intensity due to a point charge in a material medium. So let us say in a particular medium you got a charge q placed और यहाँ पे एक test charge है which is q0. Test charge are basically very small magnitude का positive charge so that it does not disturb the field created by the original charge. अब ये दोनों के बीच में there will be this Coulomb force which is given by 1/4 pi epsilon q1 q2 divided by let us say उनके बीच में distance है r, तो r का square and r cap is nothing but unit vector जो हमें force का direction बता रहा. Now we have already seen that epsilon की जगह पे we can write epsilon naught epsilon r, या ये epsilon r की जगह पे we can also write k. So यहाँ पे it will be epsilon naught into k. So for these two charges यहाँ पे q1 is equal to q और the second charge is nothing but q0. We can write 1/4 pi epsilon naught k q into q0 divided by r square और ये vector r है. From this we can find out the electric field because of this charge. That will be force per unit the test charge. तो ये हो जाएगा 1/4 pi epsilon naught k q upon r square. एंड अगर वापस से k का वैल्यू 1 हो जाएगा तो वी विल बी बैक टू द सेम फॉर्मूला जो हमें लास्ट वाले स्लाइड में मिला था. यहाँ पे अगर हम फोर्स का फॉर्मूला देखें या इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखें, दोनों ही केसेस में व्हाट वी फाइंड इज कि बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर. मीन्स इनका ग्राफ कुछ इस तरह आएगा. इनिशियली जब r की वैल्यू कम है देन इन दैट केस इलेक्ट्रिक फील्ड and the Coulomb force will be having a higher value. जैसे जैसे distance बढ़ेगा वैसे वैसे इनकी values जो है वो decrease होने वाले. That is what this graph tells us. Now before going on to the practical way of calculating electric field basically दो type की होती है. एक होती है uniform electric field और एक हो जाएगा non-uniform electric field. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हर जगह पे आपको सेम ही मिलेगा विद इन द रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है. एंड नॉन यूनिफॉर्म में यू विल फाइंड कि शायद मैग्नीट्यूड सेम मिल जाए बट डायरेक्शन सेम नहीं मिलेगा. सो इन अ फील्ड वेयर द मैग्नीट्यूड डायरेक्शन इज नॉट सेम एट ऑल द पॉइंट्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही सोर्स है, पैरेलल प्लेट्स. अगर एक प्लेट को मैं पॉजिटिवली चार्ज करता हूँ और दूसरे प्लेट को मैं नेगेटिवली चार्ज करता हूँ, देन इन दैट केस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स विल बी इन दिस मैनर. दे विल स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट एंड दे विल गो ऑन द नेगेटिव प्लेट. सो यू विल फाइंड कि इन दिस रीजन
एट एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। प्लीज नोट दिस पॉइंट, ये इसके ऊपर आपको एक एमसीक्यू भी है। नॉन यूनिफॉर्म में बाकी कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो उसमें आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो नॉन यूनिफॉर्म ही रहने वाला है, चाहे फिर वो पॉइंट चार्ज होने दो, लाइन चार्ज होने दो या वॉल्यूम चार्ज होने दो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये पॉइंट चार्ज का बात करूँ तो इससे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स सारे डायरेक्शन में फ्लो होने वाला, इन ऑल डायरेक्शन। एंड जैसे जैसे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आगे बढ़ेगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है, कम होगा, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है। एंड हर पॉइंट पे डायरेक्शन भी क्या है, अलग अलग है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि हाउ वी कैन कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड बाय यूजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज प्लेट्स। लेट अस से वी गॉट टू पैरेलल प्लेट्स, एक में वी गॉट पॉजिटिव चार्ज, दूसरे में वी गॉट नेगेटिव चार्ज, एंड इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज d। अगर मैं यहाँ पे बीच में कहीं पे एक पॉजिटिव चार्ज लाके रखूँ तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या होने वाला है, इस तरफ अट्रैक्ट होगा और वो नेगेटिव प्लेट पे जाने वाला है। तो इसमें तो हमने अभी तक कोई काम नहीं किया हुआ है, बट इफ आई वॉन्ट टू पिक दिस पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम हियर और इसको मैं उठा के अगर ये वाले प्लेट पे लेके आऊं, देन देयर विल बी फोर्स ऑफ रिपल्शन फ्रॉम दिस पॉजिटिव चार्ज जिसको मुझे ओवरकम करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो वाइल टेकिंग द चार्ज फ्रॉम दिस नेगेटिव प्लेट, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव प्लेट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, मुझे वो भी ओवरकम करना पड़ेगा। So there will be work done over here in moving the charge from this negative plate to this positive plate, and this work done is given by V into Q. V is the potential difference between these two plate and Q is the charge जो हम लोग नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट पे लेके जा रहे हैं। लेकिन हमें पता है कि वर्क डन का दूसरा भी फॉर्मूला है, एंड दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो वी गॉट VQ is equal to F into D, या अगर मैं इसको रीअरेंज करूँ, वी गॉट V by D, दिस इज इक्वल टू F by Q। अच्छा, वी हैव ऑलरेडी सीन कि ये F upon Q is nothing but electric field, and therefore we can say कि electric field is nothing but V by D over here. This is one more way of calculating electric field. It is potential between the plates divided by the distance between the plates. I hope you all understood this. Electric lines of force. This was basically introduced by Michael Faraday for understanding, for explaining and visualizing the electric and magnetic lines of force. What he said is कि if you got a positive charge and if you got a negative charge like this, then electric lines of force जो होती है ये positive वाले charge से चालू होती है and it goes on to the negative charge, यानी ये positive charge से start होंगी और ये negative charge पे जाके end होने वाली है। This is how this electric lines of force are there, and ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है, ऑन दिस लाइंस अगर आप किसी भी पॉइंट पे अगर एक टैंजेंट बनाओगे, सो इट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यहाँ पे पॉइंट ए पे वी गॉट डायरेक्शन लाइक दिस, पॉइंट बी पे वी गॉट डायरेक्शन लाइक दिस, लेट अस से देयर इज वन मोर पॉइंट सी ओवर हियर, यहाँ पे वी गॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लाइक दिस। सो एट एनी पॉइंट ऑन दिस कर्व अगर आप टैंजेंट बनाओगे तो आपको डायरेक्शन मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। एंड if you leave a test charge in this electric field, होगा क्या कि it will follow this path that we have drawn over here. So this path along which this positive charge moves is nothing but lines of force. So a line of force is basically defined as a curve such that the tangent at any point to this curve will give the direction of the electric field at that point. And यहाँ पे जितनी ज़्यादा density होगी उतना ज्यादा उसका क्या होने वाला है, स्ट्रेंथ होने वाला है। सो इफ आई गॉट अ लोकेशन लाइक दिस जहां पे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर की तरफ जा रही है, इन दिस सेक्शन वी गॉट सो मेनी लाइंस ऑफ फोर्स, एंड इफ आई मूव फॉरवर्ड इन द सेम एरिया व्हाट वी गेट इज वी गॉट लेस नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स। सो कंपैरेटिवली यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस इज स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये वाले सेक्शन में, ठीक है। सो टेक अवे पॉइंट क्या है कि अगर आपको स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना है तो आप ज्यादा लाइंस ऑफ फोर्स बनाएंगे, अगर वीकर दिखाना है तो कम लाइंस ऑफ फोर्स दिखाना है। या किसी डायग्राम में इफ यू फाइंड दैट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स
किसी रीजन में बहुत क्लोजली स्पेस्ड है और किसी रीजन में बहुत स्पार्सली स्पेस्ड है, देन इट सिंपली टेल्स यू कि यहाँ पे ये वाले सेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इज मच मच स्ट्रॉन्गर कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये वाले रीजन में आपको मिलने वाला है. I hope you all understood this. Now based on these points there are few characteristics of electric lines of force. फटाफट उसे समझ लेते हैं. First characteristics is कि the lines of force they always originate from the positively charged object and they'll end on negatively charged object जो हमने पहले डिस्कस किया. Next, these lines of force neither intersect nor meet each other because उसका मतलब क्या होएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के पास दो डायरेक्शन है एट सिंगल पॉइंट. लेट मी ट्राई एंड एक्सप्लेन दिस. इफ यू गॉट वन इलेक्ट्रिक लाइन गोइंग लाइक दिस, लाइंस ऑफ फोर्स, एंड देयर इज वन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स गोइंग लाइक दिस. अब ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे ये लोग इंटरसेक्ट हो रहे, अगर मैं पहले वाले लाइन को टैंजेंट बनाऊं तो वो हमें बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में, एंड अगर मैं सेकंड वाले को टैंजेंट बना रहा हूं तो वो हमें बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में. बट ऐसा हो नहीं सकता. एट अ पर्टिकुलर गिवन पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही डायरेक्शन होगा, एंड दैट इज व्हाई इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स दे नाइदर इंटरसेक्ट नॉर मीट ईच अदर. लेट अस गो अहेड. द लाइंस ऑफ फोर्स लीव और टर्मिनेट ऑन कंडक्टर नॉर्मली. सो इफ यू गॉट अ मेटल ऑब्जेक्ट जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो इसके ऊपर से जब लाइंस ऑफ फोर्स निकलेंगी तो दे विल बी परपेंडिकुलर, एंड इफ यू गॉट अ नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट ओवर हियर देन व्हाइल कमिंग ओवर हियर ये अपने आप को यहाँ पे परपेंडिकुलर कर लेंगे. ठीक है. सो व्हाइल स्टार्टिंग और व्हाइल टर्मिनेटिंग दीज लाइंस ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर टू कंडक्टर्स only. These lines of force do not pass through conductors and the electric field inside a conductor is always zero, but they can pass through insulators. So please understand ये वाला point कि अगर कोई भी metal है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स उनके ऊपर आके खत्म हो जाती है. It cannot pass through it. बट अगर यही मेटल की जगह पे कोई और डाइलेक्ट्रिक होता, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होता, इंसुलेटर होता, देन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स वुड हैव पास्ड थ्रू इट. आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया. यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस एट योर होम. आपका मोबाइल फोन में जो हमें सिग्नल रिसीव होता है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. यू कैन ब्लॉक इट. व्हाट यू डू इज यू कैन कीप योर मोबाइल इन अ स्टील का टिफिन बॉक्स एंड यू विल फाइंड कि उसमें कोई सिग्नल नहीं आ रहा. You can try it by calling. या अगर आपके पास स्टील का टिफिन बॉक्स नहीं है मेटल का, what you do is try it with foil paper. Even that works properly. So you can wrap your mobile phone with the foil paper and try calling it. You'll find कि it will lose the network and call will not connect. Wrap निकालने के बाद you will find कि नेटवर्क गायब था फोन में. Fine. Let us go ahead. Magnitude of electric field intensity is proportional to the number of lines of force per unit area. ये हमने लास्ट स्लाइड में ही समझा. जहां पे ज्यादा लाइंस ऑफ फोर्स रहेंगी एक छोटे से एरिया में, वहां पे विल सी कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा. एंड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी it is considered for the unit area of the surface which is held perpendicular to the field. Electric lines of forces are crowded in a region where intensity is large, and electric lines of forces are widely separated from each other in a region जहाँ पे intensity क्या है, small है. With the help of diagram हमने already देखा है. Lastly, the lines of force of a uniform electric field are parallel to each other and equally spaced. ये मैंने आपको वो parallel प्लेट वाला एग्जाम्पल बताया था, पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट. सो यू विल हैव इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड और सबका मैग्नीट्यूड्स भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, एंड दे विल बी इक्वली स्पेस्ड. बट प्लीज अंडरस्टैंड ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता. इट इज जस्ट यूज्ड टू विजुअलाइज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन. Now let us talk about electric flux. So the electric field that we discussed up till now, electric field intensity is nothing but the number of lines of force per unit area.
enclosing the lines of force. अब इसका मतलब क्या है? So from here we can find out the number of lines of force, which is nothing but the electric flux over here. So ये हो जाएगा electric field into the area enclosing. Now at time what happens is कि you got a area like this and then there is this electric field in this direction. अब यहाँ पे what we see is कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज मेकिंग सम एंगल थीटा विद दिस सरफेस वेक्टर या एरिया वेक्टर दैट वी हैव मेड ओवर हियर. सरफेस वेक्टर कैसे बनाते? कोई भी एरिया जो आप कंसिडर कर रहे हो उसको परपेंडिकुलर बना दो तो यू विल गेट एरिया वेक्टर. ठीक है. सो ओवर हियर वी फाइंड कि ये सरफेस वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में देयर इज सम एंगल थीटा. देन इन दैट केस व्हाट वी डू इज हम वही कंपोनेंट एस का लेते जो अलोंग electric field रहेगा. Now let us say we got a small flux d phi which is given by the electric field into the area through which this flux is coming out. For small surface area ds we will take only that component which is along the electric field. Let me explain this. अगर ये वो छोटा surface है ds, electric field is in this direction, ये इसका सरफेस वेक्टर है ds और इसके साथ में ये एंगल बना रहा है थीटा. व्हाट वी कैन ऑलवेज डू इज वी कैन रिजॉल्व दिस एरिया वेक्टर इनटू टू कंपोनेंट्स. ये अगर एंगल थीटा है तो ये हो जाएगा ds cos थीटा और ये दूसरा वाला हो जाता है ds sin थीटा. बट वी आर इंटरेस्टेड ओनली इन कंपोनेंट जो अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है. सो ये आ जाएगा e ds cos थीटा. सो वी गॉट d phi इज इक्वल टू e ds cos थीटा. Now we want to find out the flux over the entire surface. तो ये छोटे छोटे flux in all this small area हम लोग क्या करेंगे? सब ऐड करते जाएंगे. यानी we can integrate this and this will be equal to integral of e ds cos theta. Now this e ds cos theta can be written as vector e dot vector ds. वैसे ही यहाँ पे we will have vector e dot vector ds. अभी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दिस सरफेस इज कांस्टेंट सो वी कैन टेक दैट आउट एंड वी कैन इंटीग्रेट दिस एरिया वेक्टर. तो छोटे छोटे सारे एरिया ऐड करेंगे हम लोग. सो व्हाट वी हैव इज वी हैव दिस एंटायर एरिया वेक्टर व्हिच इज गिवन एज वेक्टर s. फ्रॉम दिस वी कैन आल्सो फाइंड आउट ये फ्लक्स का यूनिट क्या रहेगा. इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें पता है इट इज वोल्ट पर मीटर एंड दिस एरिया इज मीटर स्क्वायर. यहाँ से हमें फ्लक्स का यूनिट मिल जाएगा वोल्ट मीटर. होप यू अंडरस्टूड दिस. नाउ लेट अस चेक आउट व्हाट इज गॉस लॉ. सो गॉस लॉ इज आल्सो यूज्ड टू रिलेट द चार्ज एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इट. व्हाट गॉस सेड इज कि अगर आप कोई भी एक क्लोज कंटेनर ले लो उसके अंदर चार्ज आपने कुछ तो रखा हुआ है लेट अस से प्लस q, देन इन दैट केस जो फ्लक्स ये क्लोज सरफेस के थ्रू पास होएगा दैट विल बी गिवन बाय q बाय एप्सिलॉन नॉट इफ दिस एंटायर थिंग इज इन फ्री स्पेस. नाउ वी कैन आल्सो प्रूव दिस. लेट अस से ये क्लोज सरफेस के अंदर वी गॉट दिस चार्ज प्लस q ओवर हियर ऑन दिस ऑब्जेक्ट. एक छोटा सा सरफेस एज्यूम कर लेते ds. एट दिस पॉइंट लेट अस से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर के तरफ आ रहा है इस तरफ एंड ये एरिया वेक्टर है ds विच इज मेकिंग सम एंगल थीटा ओवर हियर. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ चार्ज q एट डिस्टेंस r हम लोग फाइंड कर सकते हैं. दिस विल बी इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर. ये हमने पहले ही देखा है. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज q एट अ डिस्टेंस r हमें ये मिल जाएगा. नाउ द फ्लक्स दैट इज कमिंग आउट थ्रू दिस स्मॉल एरिया इज गिवन बाय e ds cos थीटा जैसे हमने लास्ट वाले स्लाइड पे देखा था. e की जगह पे वी कैन राइट q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर and this will be d phi actually. We can write this as d phi is equal to q upon 4 pi epsilon naught ds cos theta by r square. और ये जो ds cos theta by r square हमें मिला this is nothing but the solid angle जिसको हम लोग d omega से डिनोट कर सकते या d ohm से भी कर सकते. What do you mean by this solid angle? Let us say you got a object like this और ये ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने एक छोटा सा शेप कंसिडर किया हुआ है.
Then if you connect all the points like this, then यहाँ पे एक 3D angle जो बन रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, solid angle, and it is given by this formula यहाँ पे. So finally we are going to find out total flux कितना है, which will be integral of d phi over here. तो ये हमें मिल जाएगा q upon 4 pi epsilon naught d omega, and flux is equal to q upon 4 pi epsilon naught आप कॉमन ले सकते हो, and d omega is integrating all such angles. और अगर आप इसको थ्रू आउट 360 अगर हम इसको इंटीग्रेट करते तो इसका वैल्यू हमें 4 पाई आता है. सो वी गॉट q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d ओमेगा इज आल्सो 4 पाई. तो ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, एंड व्हाट वी गेट इज फ्लक्स कमिंग आउट इज नथिंग बट इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. दैट इज व्हाट जो हमने स्टार्टिंग में बोला कि दिस इज द गॉस लॉ. नाउ व्हाट इफ यू गॉट बहुत सारा चार्ज अंदर, तो what we need to do is we need to add those charges और फिर उनका आंसर लिखना है. So let us say you got charge Q1, Q2, Q3 over here. तो इन सब का कुछ तो एडिशन होगा. Let us say Q1 plus Q2 plus Q3 will give you capital Q. So in that case जो flux पास होने वाला है through the surface, it will be equal to capital Q by epsilon naught. Now please understand यहाँ पे जब हम ऐड कर रहे हैं तो हम साइंस भी अकाउंट करने वाले हैं. So if in a particular closed object अगर चार्ज प्लस 3 कूलम और माइनस 3 कूलम है तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 0, एंड देन द लाइंस कमिंग आउट विल ऑल्सो बिकम 0. सो बेसिक फंडा यहाँ पे क्या है गॉस लॉ का, कि अगर कोई भी क्लोज्ड ऑब्जेक्ट है उसके अंदर अगर आप कोई चार्ज रखोगे, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो ये जो उसका सरफेस है उसके थ्रू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होने वाली है. कितना पास होगी, सो दैट विल बी इक्वल टू टोटल नेट चार्ज अंदर कितना है डिवाइडेड बाय द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम. अगर फ्री स्पेस है तो वहां पे एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा. सो फाइनली वी कैन से ये इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds दिस इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ये हो गया हमारा फाइनल फॉर्मूला फॉर द गॉस लॉ. Remember this because आपका 12th electrostatics starts with this. The statement of the Gauss law is कि the flux of the net electric field through a closed surface is equal to the net charge enclosed by the surface and divided by epsilon naught. So total electric field जो पास होने वाला है, net electric field जो पास होने वाला है through a closed surface is equal to कितना चार्ज है उसके अंदर, net charge divided by epsilon naught. अच्छा, वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड इज कि अगर एक क्लोज सरफेस के अंदर यू गॉट अ पॉजिटिव चार्ज, तो जो फ्लक्स का डायरेक्शन है दैट विल बी आउटवर्ड, बिकॉज हमने ऑलरेडी देखा है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है. एंड इन द सेम प्लेस अगर एक नेगेटिव चार्ज है तो फ्लक्स का डायरेक्शन विल बी इनवर्ड. एंड लास्टली अगर चार्ज है ही नहीं अंदर, चार्ज आउटसाइड द बॉडी है, देन इन दैट केस अगर ये पॉजिटिव चार्ज है लेट अस से, तो जो फ्लक्स रहेगा वो इन ऑल डायरेक्शन ट्रैवल करने वाला है. बट देर आर चांसेस कि कुछ फ्लक्स इसमें एंटर करे, बट वो यहाँ पे एंड नहीं होगा क्योंकि अंदर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है. सो इट विल क्रॉस द ऑब्जेक्ट, इट विल पास थ्रू द ऑब्जेक्ट, एंड फाइनली वी विल हैव नो नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्लोज सरफेस. नो नेट फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस. जितना अंदर फ्लक्स जा रहा है उतना बाहर निकलेगा. सो यहाँ पे नेट फ्लक्स जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू 0. होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. नाउ लेट अस टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल. इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है कि लेट अस से यू गॉट टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट नेचर, यानी एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, बट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है. अगर पहला वाला 5 कूलम है तो दूसरा वाला भी 5 कूलम ही रहेगा, बट एक प्लस 5 कूलम है, दूसरा माइनस 5 कूलम है. एंड इफ दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, फाइनाइट डिस्टेंस r, देन इनको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइपोल. नाउ इन दिस डाइपोल द लाइन जॉइनिंग देम इज कॉल्ड एज एक्सिस. एंड अगर मैं एक वर्टिकल लाइन बनाऊं जो इसको बाइसेक्ट करे प्रॉपरली, देन इसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं या इक्वेटोरियल लाइन. So what we have seen up till now, electric dipole is nothing but pair of two equal and opposite charges separated by some distance. और इसमें हमने देख लिया कि
जो लाइन इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन करती है वो एक्सिस है। जैसे अर्थ का नॉर्थ पोल और साउथ पोल को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम लोग एक्सिस बोलते हैं और उसको कट करने वाली लाइन को हम लोग इक्वेटर बोलते हैं। वैसे यहाँ पे भी एक्सिस को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करने वाली लाइन को हम लोग इक्वेटर बोलते हैं या इक्वेटोरियल लाइन। एवरी डाइपोल का स्ट्रेंथ वी कैन मेजर एंड दैट स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल इज कॉल्ड एज डाइपोल मोमेंट। इट इज डिनोटेड बाय P और इसका फॉर्मूला होता है Q into 2L। Q is the magnitude of any of these two charge, दोनों सेम है, and 2L is this distance over here. Now this dipole moment P is a vector quantity और इसका जो डायरेक्शन है it is always from negative charge से लेके positive charge तक। So P will be directed like this from negative charge to positive charge। इसमें से बहुत सिंपल है यूनिट निकालना। चार्ज के वजह से वी गॉट कूलम, लेंथ के वजह से वी गॉट मीटर। सो एक यूनिट हो गया इसका कूलम मीटर। देयर इज वन मोर यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट जिसको डेबी बोलते हैं एंड दिस 1 डेबी इज नथिंग बट 3.33 इंटू 10⁻³ कूलम मीटर। सो ये कन्वर्जन का फॉर्मूला है इन दोनों के बीच में, कूलम मीटर और डेबी में। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कि if we place an electric dipole in an uniform electric field, then there will be a couple acting on it and how much it is. So let us say एक dipole ये line पे है, this is plus Q and ये हो गया minus Q and there is this electric field along this direction, uniform electric field। और ये जो electric field और डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट जैसे हमने ऑलरेडी बोला इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज से लेके पॉजिटिव चार्ज तक। तो डाइपोल मोमेंट हमारा ये डायरेक्शन में। द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस वो भी हमें पता है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं 2L। सो ये जो डाइपोल मोमेंट है यहाँ पे वो क्या हो गया Q into 2L। नाउ दिस पॉजिटिव चार्ज इज गोइंग टू एक्सपीरियंस अ फोर्स ओवर हियर। जैसे हमने ऑलरेडी बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स क्या हो जाएगा चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये जो पॉजिटिव वाला चार्ज है इट विल बी अट्रैक्टेड इन दिस डायरेक्शन, दिस विल बी द फोर्स विच विल बी Q into E एंड ये वाले पे देयर विल बी अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन विच विल बी इक्वल टू -Q into E। ऐसा क्यों? वी ऑल नो दैट कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बेसिकली चालू कहाँ पे हुआ रहेगा, समवेयर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट जो पॉजिटिवली चार्ज है एंड इट इज गोइंग टू एंड समवेयर ऑन द ऑब्जेक्ट विच इज नेगेटिवली चार्ज। ये जो पॉजिटिव चार्ज है इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस नेगेटिव चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। सो रिमेंबर दिस इन द सिंपल वे कि पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज गोज इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। Now over here we got one force acting in this direction and there is this another force which is acting in this direction। दोनों force का magnitude same है but direction अलग अलग है and because of which यहाँ पे there is this torque which is acting। ये torque के वजह से ये जो dipole है it rotates और ये टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो टॉर्क का सिंपल सा फॉर्मूला है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फोर्सेस इनटू कोई भी एक फोर्स ले लो, यहाँ पे दोनों तो सेम ही है। तो हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस r निकालना है बिटवीन दीज टू फोर्सेस। नाउ इफ वी कंप्लीट दिस ट्राइंगल, हमें पता है कि ये वाला एंगल थीटा है एंड ये वाला जो डिस्टेंस है दिस इज 2L एंड वी आर इंटरेस्टेड इन दिस अपोजिट साइड r। साइन थीटा क्या हो जाता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस विच इज 2L। सो यहाँ पे जो अपोजिट साइड r है वो हमें क्या मिल गया 2L sin theta। So let us put it in this formula। We got torque is equal to 2L sin theta और उसके साथ में force की जगह पे we can write Q into E। Now in this 2L और Q की जगह पे we can write down dipole moment P। So we got tau is equal to E P sin theta या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं tau is equal to P cross E in vector form। अब अगर साइन थीटा 1 होगा यानी एंगल 90 होगा तो टॉर्क का वैल्यू जो रहता है वो मैक्सिमम हो जाएगा। दैट मीन्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और जो डाइपोल मोमेंट है इस डायरेक्शन में, तो अगर इन दोनों के बीच में एंगल हो गया 90 तो दिस डाइपोल विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम टॉर्क। एंड इफ इन दोनों के बीच में एंगल 0 हो गया यानी दोनों सेम लाइंस में आ गए, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द डाइपोल मोमेंट,
then the torque will become 0. So these are the special cases. I hope आप लोग को ये समझ में आया. Next part देख लेते हैं. Electric field intensity at a point due to an electric dipole. यहाँ पे पहला केस में we'll be considering the point on the axis of the dipole. So let us say we got a charge minus q at point A, another charge plus q at point B. ये क्या फॉर्म कर देगा आपका डाइपोल. इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है, सेपरेटेड बाय सम फाइनाइट डिस्टेंस. नाउ दिस लाइन विच जॉइंस दीज टू चार्जेस, उसको हम लोग एक्सिस बोलते हैं. लेट अस से at some point P which is at distance r from the center of this dipole, हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है. ऑलवेज रिमेंबर वी विल बी फाइंडिंग इट विद रेफरेंस टू द सेंटर ऑफ द डाइपोल. अब यहाँ पे ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक एक चार्ज के वजह से पॉइंट P पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फाइंड कर लेते हैं. ट्राई एंड रिमेंबर A और B के बीच में जो डिस्टेंस है 2L है, तो ये वाला डिस्टेंस L हो जाएगा और ये वाला डिस्टेंस L हो जाएगा. दो डाइपोल के दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस हम लोग 2L लिखते हैं. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P बिकॉज ऑफ ये फर्स्ट वाला चार्ज जो पॉइंट A पे है, that will be equal to 1/4 pi epsilon naught q divided by यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला डिस्टेंस. दिस डिस्टेंस इज L एंड ये वाला डिस्टेंस इज R. सो डिस्टेंस हो गया R प्लस L द होल स्क्वायर. और यहाँ पे हमें डायरेक्शन दिखाना है अभी. सो नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इट विल बी टुवर्ड्स द पॉइंट A. जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल एंड ऑन द नेगेटिव चार्ज. तो पॉइंट P पे जो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट. सो अगर मैं इसको नाम दे देता हूँ Q, सो वी गॉट वेक्टर PQ शोइंग द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर हियर. Similarly, electric field at point P due to charge at point B आ जाएगा 1/4 pi epsilon naught Q upon. Now this distance will be nothing but R minus L. So this will be R minus L the whole square. And positive charge की वजह से electric field outward रहता है. So P से लेके let us say we got vector PS showing the direction of the electric field which is outward. Now what do we find over here is कि electric field at point P ये दोनों opposite direction में है, and when we will add them ये दोनों क्या होने वाले हैं, subtract होने वाले. So the total electric field over here will be equal to electric field due to charge at point B minus electric field due to charge at point A. अब आप बोलेंगे EB minus EA क्यों लिखा, EA minus EB क्यों नहीं लिखा? Because at point P इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ A है एंड बिकॉज ऑफ B है. नेगेटिव चार्ज पॉइंट P से काफी दूर है, तो उसके वजह से जो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू रहने वाला है दैट विल बी लेस कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज. देयरफॉर हमने बड़े में से छोटा माइनस किया हुआ. सो दिस विल बी इक्वल टू, दोनों में से 1/4 pi epsilon naught कॉमन ले लेते हैं एंड वी कैन इवन टेक Q कॉमन. So we'll be left with 1/r minus L the whole square minus 1/r plus L the whole square. This will be equal to Q upon 4 pi epsilon naught. ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे. So we will have r square plus L square plus 2LR minus r square plus 2LR minus L square divided by, डिनोमिनेटर थोड़ा सा लंबा है सॉल्व करने के लिए, मैं साइड में उसका कैलकुलेशन रख दे रहा हूँ फॉर योर रेफरेंस. यहाँ पे इफ यू सी ये आर स्क्वायर प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, एल स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा. विल बी लेफ्ट विथ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू Q इंटू 2L इंटू आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर द होल स्क्वायर. एंड येस वी गॉट 1/4 pi epsilon naught. नाउ इसमें ये जो Q इंटू 2L है दिस कैन बी रिटन एज डाइपोल मोमेंट. सो ये हो जाएगा P इंटू आर डिवाइडेड बाय 4 pi epsilon naught. आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो सकता है, बट यहाँ पे वी विल बी कंसिडरिंग दैट आर का वैल्यू इज मच मच ग्रेटर देन एल. यानी ये एक शॉर्ट डाइपोल है, इसको हम लोग शॉर्ट डाइपोल बोलते हैं. शॉर्ट डाइपोल मतलब ये दीज टू चार्जेस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. नाउ कंपेयर टू जहाँ पे हम लोग फील्ड फाइंड कर रहे हैं पॉइंट P पे, दैट डिस्टेंस इज मच मच ग्रेटर देन दी हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दी टू चार्जेस.
So what we can do is we can neglect this L square wala term. So what we are left with is R का square which will make it R raised to 4. एक R हम लोग न्यूमरेटर से कैंसिल कर सकते हैं. So we got electric field is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught dipole moment divided by R cube. This is the magnitude that we got. और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको हमेशा इन दिस केस अलोंग द डाइपोल मोमेंट मिलेगा. तो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि डाइपोल मोमेंट हमेशा कहाँ से कहाँ तक रहता है, नेगेटिव चार्ज से लेके पॉजिटिव चार्ज. एंड ये यहाँ पे जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिलने वाला है, दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट बी. यानी ये हम पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द राइट अलोंग PS. तो एज वी कैन सी यहाँ पे डायरेक्शन सेम है. You can try this out by selecting a point P on the left hand side also. You will find that direction of electric field over there also is along the dipole moment. Hope you all understood this. Next वाला case देख लेते हैं. Now electric intensity at a point due to electric dipole on the equator line. So यहाँ पे we will again consider 2 points where we got charges placed A and B. यहाँ पे we got charges minus Q and plus Q. This line is the axis. और यहाँ पे vertical line अगर मैं एक draw करूँ तो that becomes the equator. Let us consider a point P over here जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है बिकॉज ऑफ दिस डाइपोल. वंस अगेन हम लोग सेम मेथड फॉलो करेंगे. विल बी फाइंडिंग आउट चार्ज एट पॉइंट ए के वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड विल फाइंड आउट चार्ज एट पॉइंट बी के वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसका हम लोग इक्विवेलेंट निकालेंगे. नाउ लेट अस टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट पॉइंट ए. अब ये नेगेटिव चार्ज है तो इसके वजह से पॉइंट ए पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी अलोंग PA because नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर एंड होता है. सो इट कम्स टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज. फॉर्मूला हो जाएगा 1 upon 4 pi epsilon naught Q by the distance over here. Now ये वाला डिस्टेंस L है. This point P is at a distance R from the center of the dipole. तो ये वाला जो डिस्टेंस आ जाएगा दिस विल बी नथिंग बट R square plus L square अंडर रूट फ्रॉम हाइपोटेनस थ्योरम. तो ये आ जाएगा R square plus L square अंडर रूट और उसका हमें स्क्वायर भी लेना है तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा एंड द डायरेक्शन इज अलोंग P to A. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज एट पॉइंट B वो हो जाएगा 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon once again ये वाला भी जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी R square plus L square अंडर रूट द होल स्क्वायर. बट दिस टाइम ये जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये ऊपर की तरफ होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होता है एंड इट मूव्स अवे. एट पॉइंट P पे भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी आउटवर्ड. सो वी गॉट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग BP. एज वी ऑल कैन सी ये दोनों वेक्टर्स एक लाइन में नहीं है तो हम लोग इसको सिंपली ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. बट एज यू कैन सी दोनों के मैग्नीट्यूड्स यहाँ पे सेम है. सो हाउ टू सॉल्व दिस? फॉर दिस वी विल कंसिडर दीज टू वेक्टर्स जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है. वन इज EB and this is EA. Now let us say these vectors are making angle theta with the horizontal. तो हम क्या करेंगे, ये वेक्टर्स को रिजॉल्व कर लेंगे. जब हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो along horizontal axis EB के लिए we will have EB cos theta और vertical component आ जाएगा EB sin theta. Likewise EA को भी जब हम रिजॉल्व करेंगे तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा EA sin theta एंड ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा ये इसके साथ में ही आने वाला है विच इज EA cos theta. ऑलवेज रिमेंबर थीटा के साथ वाला जो रहता है दैट विल बी cos. नाउ फ्रॉम दिस वी कैन सी दैट EA sin theta एंड EB sin theta दे आर गोइंग टू कैंसल आउट ईच अदर क्योंकि EA और EB सेम है तो EA sin theta और EB sin theta भी क्या होगा, सेम होगा. तो ये दोनों फोर्सेस तो चले गए. So what we have is we have this resultant force along the negative x-axis and this is nothing but EB cos theta plus EA cos theta, or you can write this as 2 times EA cos theta. Now let us put the values over here. तो ये हो जाएगा 2 times EA की जगह पे we can write Q upon 4 pi epsilon naught R square plus L square and in this triangle
यहाँ पे आप ध्यान दो, अगर ये एंगल थीटा है तो ये ट्राइंगल के अंदर वाला भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा. एंड फ्रॉम हियर वी कैन राइट cos थीटा विल बी इक्वल टू एडजेसेंट विच इज इक्वल टू L अपॉन हाइपोटेनियस विच इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर. ये आ जाएगा रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर. नाउ वंस अगेन अगर आप न्यूमरेटर में देखोगे तो यू गॉट 2, यू गॉट q, यू गॉट L. So q into 2L will be nothing but P divided by you got 4 pi epsilon naught. और यहाँ पे r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेस टू 1 है, यहाँ पे r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेस टू हाफ है एंड 1 प्लस हाफ हो जाएगा 3/2. सो वी गॉट r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेस टू 3/2. Once again we will take that condition कि r is much greater than L and therefore we can neglect this L square वाला term. And finally we got electric field is equal to P upon 4 pi epsilon naught. ये L square चला जाएगा तो we are left with r raised to 2 into 3/2. ये 2 और 2 cancel हो जाएगा. So we got electric field as P upon 4 pi epsilon naught r cube. Now point to note over here is कि electric field का direction will be opposite to the डाइपोल मोमेंट. यहाँ पे अगर आप इन दिस एग्जाम्पल देखोगे तो डाइपोल मोमेंट ये नेगेटिव से पॉजिटिव टुवर्ड्स द राइट है, बट जो रिजल्टेंट यहाँ पे आ रहा है दैट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टुवर्ड्स द लेफ्ट. प्लीज नोट दिस पॉइंट. अगर आप एक्सिस वाला फॉर्मूला याद करोगे, सो फॉर एक्सिस वी गॉट 1/4 pi epsilon naught 2p by r cube एंड यहाँ पे वी हैव गॉट 1/4 pi epsilon naught p by r cube. खाली 2 का डिफरेंस है न्यूमरेटर से. Please note the point. Lastly, we got continuous charge distribution. जहाँ पे what happens is कि कई बार चार्ज discretely available नहीं रहता है. जैसे हमने बोला कि यहाँ पे चार्ज है +5 कूलम, यहाँ पे चार्ज है -6 कूलम, यहाँ पे चार्ज है -2 कूलम. अब ये सारे चार्ज क्या है, डिस्क्रीट है, अलग अलग है, सेपरेटेड है. बट कई बार क्या होता है चार्जेस इवनली स्प्रेडेड होते हैं एक पर्टिकुलर सरफेस पे या वॉल्यूम में या एक वायर पे. सो बेस्ड ऑन दिस वी गॉट 3 टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. द फर्स्ट वन इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके लिए हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन करेंगे विच इज डिनोटेड बाय लैम्डा. सो लेट अस से यू गॉट अ लॉन्ग वायर और रॉड which is having charges distributed on it. So ये जो lambda है that will tell you कि how much charge is there per unit length. यानी अगर ये वायर 10 मीटर का है, आपको इसमें पता चलेगा 1 मीटर वायर पे कितना चार्ज है. बाकी अगर आपको टोटल चार्ज निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, लैम्डा इंटू एल करके टोटल चार्ज फाइंड कर सकते हो पूरे वायर का. ठीक है. वंस अगेन लैम्डा आपको क्या बताएगा कि एक यूनिट वायर में कितने चार्ज अवेलेबल है. इसका यूनिट क्या हो जाएगा यहाँ पे, कूलम पर मीटर. सिमिलरली इफ यू गॉट द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ एरिया, then in that case what we do is we define surface charge density. It is denoted by sigma, and this sigma tells you how much charge is there on a particular area. और यहाँ पे इसका जो यूनिट आ जाता है that is कूलम पर मीटर स्क्वायर. इन सिंपल वर्ड्स, अगर आप 1 मीटर स्क्वायर का एरिया सेलेक्ट करोगे तो इट विल टेल यू कि ये इतने एरिया में कितना चार्ज है. बाकी अगर आपको टोटल चार्ज फाइंड करना है तो क्या करो, ये सिग्मा के वैल्यू से टोटल एरिया को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको टोटल चार्ज मिल जाएगा ऑन अ गिवन सरफेस. लास्टली, if the charge is uniformly distributed in a volume V, then in that case we define volume charge density rho. एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपको वंस अगेन वही बताएगा कि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना चार्ज प्रेजेंट है. यहाँ पे यूनिट हो जाएगा कूलम पर मीटर क्यूब. ठीक है. सो लेट अस से यू गॉट अ बॉक्स लाइक दिस विच इज फिल्ड विथ चार्ज पार्टिकल एंड यहाँ पे यू टुक आउट यूनिट ऑफ वॉल्यूम, लेट अस से 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम है इसका. इसके अंदर कितना चार्ज है दैट विल बी गिवन बाय दिस वॉल्यूम चार्ज density, and then what you can do is you can multiply by total volume to get the total charge. I hope you all understood this. Please note this point क्योंकि 12th का electrostatics will start with this continuous charge distribution and Gauss law जो हमने पढ़ा हुआ. Let us quickly revise all the formulas जो हमने यहाँ पे किए.
Coulomb's law says that कि अगर आपके पास दो चार्ज पार्टिकल है, then there will be force of attraction or repulsion between them, which is given by 1 upon 4 pi epsilon q1 q2 divided by r square, where r is the distance between them and epsilon is the permittivity. If it is free space तो यहाँ पे आ जाएगा epsilon naught. अगर फ्री स्पेस का बात नहीं हो रहा है, then in that case epsilon की जगह पे what we do is we write epsilon naught into epsilon r, where epsilon r is the relative permittivity, या इसकी जगह पे k भी लिखते हैं. तो ये वाला टर्म आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा इसकी वैल्यू. नेक्स्ट, फ्रॉम फोर्स what we did was we defined electric field. So electric field is nothing but force per unit charge, जो आ जाता है 1 upon 4 pi epsilon naught q by r square. So if you got a charge q and if you want to find out कि at distance r electric field intensity कितना है, then we will be using this formula. We also found out electric field intensity का दूसरा formula, which is v by d. And then we went to Gauss law, which says that कि कोई भी अगर enclosed body है and उसके अंदर कुछ net charge प्रेजेंट है तो कितना फ्लक्स बाहर आएगा, दैट विल बी गिवन बाय नेट चार्ज एनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. दिस इज आल्सो इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई डॉट ds. एंड देन वी केम टू इलेक्ट्रिक डाइपोल डिनोटेड बाय p. इसका फॉर्मूला हमने देखा, इट इज q into 2l. couple acting on this dipole in a uniform electric field E will be given by tau is equal to p cross E, या हम लोग tau is equal to PE sin theta लिख सकते. Theta will be angle between dipole moment and electric field. And then we found out electric field intensity on the axis, which was due to dipole, which was 1 upon 4 pi epsilon naught 2p by r cube, and equator पे it is 1 upon 4 pi epsilon naught p by r cube. Lastly, we defined lambda, sigma and rho. Lambda is nothing but linear charge density, charge per unit length. Sigma is nothing but surface charge density, which is charge per unit area. And rho is nothing but volume charge density. इसका यूनिट है coulomb per meter. Sigma के लिए we got coulomb per meter square, and rho के लिए we got coulomb per meter cube. I hope you all understood this. Thank you for your time. If you are finding this lecture series useful, then show us your appreciation by clicking on the like button, and don't forget to share it with your friends and classmates. Stay connected by subscribing to Physics HQ for upcoming classes, and join our Telegram group for all latest development and real-time updates from Physics HQ. See you all in the next class. This is Professor Sandeep from Physics HQ signing off.